Question number 3. Read the question. A hospital has to pay nurses for 40 hours a week. One nurse is assigned to one patient. The cost per hour for each of the nurses is given below. So there is 1-to-1 assignment. So we can use the assignment technique. Find the nurse-patient combination to minimize cost to the hospital. Now minimization is the objective. We have to find the combination of nurse and patient. How much does each nurse earn per week? हर एक नर्स एक हफ्ते में कितना अर्न कर रही है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. नीचे जो दिया है दैट इज कॉस्ट पर आवर, ऊपर ही लाइन में लिखा हुआ है कॉस्ट पर आवर फॉर ईच नर्स इज गिवन बिलो. सो द टेबल में द वैल्यूज विच आर गिवन दे आर कॉस्ट पर आवर एंड इन 1 वीक वी हैव 40 such hours. So we have 3 patients W, X and Y and we have 3 nurses K, L and M. So if nurse K is appointed for patient W, it will charge 10 rupees per hour. If it is appointed for patient X, again it will charge 10 rupees per hour. But if she is appointed for Y, she will charge 30 rupees per hour. So like that the values are given, cost per hour. Suppose that a new patient Z is admitted and that a new nurse N is appointed. एक नया patient आया और एक नई nurse आई है. The new patient is charged rupees 40 per hour by each of the existing nurses. ये जो new patient आ रहा है, it is charged 40 per hour by all these 3 nurses K, L and M. जो existing nurses हैं तीनों, वो सब उससे 40 rupees per hour charge कर रही हैं. The new nurse charges rupees 50 per hour irrespective of the patient. जो न्यू नर्स आई है वो चारों ही पेशेंट से, जो एग्जिस्टिंग पेशेंट है प्लस जो नया पेशेंट आया है, कोई भी पेशेंट उसे दे दो, शी विल चार्ज 50 रुपीज पर आवर ओनली. वॉट वुड बी योर रिवाइज्ड कैलकुलेशन? सो नाउ इन दिस इज द थर्ड पार्ट. इसमें हमें फिर से कैलकुलेट करना है. द न्यू असाइनमेंट वील हैव टू कैलकुलेट. कमेंट ऑन द न्यू सोल्यूशन. नया जो आंसर आएगा उस पर वी हैव टू कमेंट. सबसे पहले तो जो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है टेबल, वी विल सॉल्व दैट. So the matrix given is 10, 10, 30, 30, 10, 20, 20, 30, 20. The objective is minimization. You will have to write below this. Objective is minimization and nature of data is balanced. Then we will apply the row operations. Row operations करेंगे. First row में the minimum element is 10. So we will have 0, 0 and 20. Second row में again minimum element is 10, 20, 0, 10. Third row में 20, 0, 10 and 0. This is after the application of row operations. Then we will apply column operations. Actually column operations apply करोगे तो भी you will get the same answer because in every column you have 0. हर एक का minimum element will be 0 and when you will deduct it you will get the same answer. So after applying of column operations again the matrix is same. If you can judge this कि आपको कॉलम ऑपरेशन करने से भी सेम ही आंसर मिल रहा है, सो यू कैन सिंपली राइट ओवर हियर आल्सो एंड कॉलम ऑपरेशन. 2 अलग अलग लिखने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप खुद से जज कर पाते हो तो. अगर कन्फ्यूजन लगता है तो फिर अगेन डू द नेक्स्ट स्टेप. नाउ वी विल फॉर्म लाइन्स. सारे ज़ीरोज़ को कवर करने के लिए हमें 3 लाइंस बनानी ही पड़ेंगी. 3 से कम लाइंस में ज़ीरोज़ कैन नॉट बी कवर्ड. सो नाउ द नंबर ऑफ लाइंस
is equal to order of matrix, which is equal to 3. Both are equal. That means this is the optimum assignment. So we'll assign based on this matrix. Second row में we have only 1 0. So first let's assign it to the second row. बाकी सब cancel हो जाएंगे. Third column में we have 1 0 and first row में also we have 1 single 0. So this will be our assignment. So nurse K को we are assigning patient W, nurse L is assigned patient X and nurse M is assigned patient Y. ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट जिसमें हमें सिर्फ कॉम्बिनेशन निकालना था. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन. सेकेंड वाले पॉइंट पे हमसे पूछा है हाउ डज ईच नर्स अर्न पर वीक, तो वो भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं. अर्निंग्स पर वीक, नर्स जो अर्न करेगी वही हॉस्पिटल का कॉस्ट होगा. Nurse K was charging 10 rupees from W on hourly basis and she is working 40 hours. So total cost will be 400. L is charging again 10 rupees from X on hourly basis. So again for 40 hours it will be 400. And M is charging 20 rupees to Y. For 40 hours it will be 800. So if we do the total we'll have 1600. टोटल हॉस्पिटल को नर्स का कॉस्ट लगेगा 1600. नेक्स्ट में बोला है नाउ 1 मोर नर्स एंड 1 मोर न्यू पेशेंट इज एडेड. अब जब ये दोनों ऐड होंगे तब हमारे असाइनमेंट का सोल्यूशन क्या होगा. ओके, सो व्हेन यू हैव 1 मोर नर्स आपका एक और रो बन जाएगा यहाँ पर. दीज वर द रोज फॉर 3 नर्सेस. एक नर्स और आई है तो 4th रो यहाँ पर ऐड हो जाएगा. यू हैव 1 मोर पेशेंट, सो 1 मोर कॉलम विल बी एडेड अप. ओके, सो नाउ द न्यू मैट्रिक्स विल बी जो नई नर्स आई है वो कितना चार्ज कर रही है 50 irrespective of any patient. So these are nurses, nurse K, L, M and N. So N will be charging 50. Patients are W, X, Y and Z. कोई भी patient हो, the new nurse is charging 50 rupees only. Whereas जो existing nurses हैं, they will charge rupees 40 from the new patients. तो Z से सारी पुरानी nurses, that is X, K, L and M, they will be charging 40 rupees. So this will be the new matrix, the revised matrix. Again in this matrix also the data is balanced and the objective is minimization. So we can do the assignment as it is. वापस से रो ऑपरेशंस हम अप्लाई करेंगे. So we'll have 0, 0, 20 and 30, 20, 0, 10 and 30, 0, 10, 0 and 20 and 0. Now again every column has a 0. सारे कॉलम्स में 0 है, तो जब आप कॉलम ऑपरेशन करोगे you will get the same matrix. हर एक का मिनिमम एलिमेंट क्योंकि 0 हो जाएगा. ओके, तो दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन सिंपली राइट ओवर हियर ओनली एंड कॉलम ऑपरेशंस.
ओके, नाउ इसी में ही लाइंस ड्रॉ करिए. कितनी लाइंस में आप जीरोस को कवर कर सकते हो? अगेन 4 ही बनेंगी. 1 2 3 एंड 4. 4 लाइंस हैव टू बी ड्रॉन. तो वापस से दिस विल बी द ऑप्टिमम असाइनमेंट. नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज इक्वल टू 4. तो हम इसी पे ही असाइन करें. फोर्थ कॉलम हैज़ ओनली 1 0 एंड सेकेंड रो हैज़ ओनली 1 0. यहाँ पर असाइनमेंट कर देते हैं पहले. देन फर्स्ट रो ऑल्सो हैज़ 1 0. So now the revised assignment will be nurse K, L, M and N and patient K को हमने असाइन किया W, L को असाइन किया X, M को असाइन किया Y एंड N को असाइन किया हमने Z. ओके, यहाँ तक एनी डाउट्स? दिस वॉज द थर्ड पार्ट. फोर्थ पार्ट में सिंपली हमें बोला है कमेंट ऑन दिस न्यू सोल्यूशन. इस पे अब हमें कमेंट करना है. एनीबडी कैन पॉइंट आउट एनीथिंग फ्रॉम दिस एंटायर क्वेश्चन? Anything which is worth noticing? The location for K and M is same. Correct. If you see the older one, the previous part, यहाँ पर भी हमने K को W, L को X and M को Y ही अलॉट किया था. Even over here it's the same. जो नया पेशेंट आ रहा है उसको हमने नई नर्स को अलॉट कर दिया. ओके, Why did it happen? अगर आप ये मैट्रिक्स देखो तो जो न्यू पेशेंट आ रहा है उससे सारी नर्सेज एक्स्ट्रा चार्ज कर रही हैं. ऑल दी नर्सेज आर चार्जिंग मोर फ्रॉम द न्यू पेशेंट. ओल्ड पेशेंट से सब लोग कम चार्ज कर रहे हैं, नए पेशेंट से सब ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं. और ये जो न्यू नर्स आई है वो तो हर एक से ज़्यादा ही चार्ज कर रही है. इररिस्पेक्टिव ऑफ द पेशेंट इट्स चार्जिंग द सेम अमाउंट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज. सबसे वो एक ही अमाउंट चार्ज कर रही है. ओके, तो इफ़ यू विल गो विद एनी अदर एलोकेशन, अगर आप इस न्यू पेशेंट को पुराने किसी भी नर्स के साथ में अलॉट करते हो ना तो उन नर्स की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी. वेराज जो नई नर्स आई है उसको अगर आप पुराना पेशेंट दोगे तो भी वो तो उतना ही चार्ज करेगी. मतलब इस नर्स का तो जो भी पोर्शन है वो फिक्स्ड है, इसको 50 ही चार्ज करना है. आप नया पेशेंट दो, पुराना पेशेंट दो, कुछ भी दो, दैट इज फिक्स्ड. ये हमें इस नर्स का कॉस्ट 50 लगना ही है. ये तो फिक्स्ड कॉस्ट की तरह हो गया. हमें अब कॉस्ट कटिंग कहाँ पर हम कर सकते हैं? कॉस्ट सेविंग इन 3 नर्स में. इन तीनों में हम कोशिश करेंगे कि जो मिनिमम कॉस्टिंग आए हम उस अलॉटमेंट के साथ में जाए. ओके, और मिनिमम इस Z के साथ नहीं आ सकता क्योंकि Z से ये तीनों ही नर्स ज़्यादा ही चार्ज कर रही हैं. इसका मतलब जो पुराने पेशेंट्स थे ना उनको ही अगर अलॉट करेंगे हम पुरानी नर्सेस को, ओनली देन अवर कॉस्टिंग विल बी रिड्यूस्ड. क्लियर है? तो आपको एक्चुअली ये सारा असाइनमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है. व्हेन यू विल हैव दिस क्वेश्चन, यहाँ तो बोला है आपको असाइन करने के लिए, तो यू विल हैव टू डू ऑल दीज स्टेप्स. बट प्रैक्टिकल लाइफ में यू शुड बी दैट एक्सपर्ट. आप जब इतना पढ़ोगे तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद कि वंस यू विल सी अ सिचुएशन लाइक दिस, आप ऑटोमेटिकली बोल सकते हो विदाउट डूइंग ऑल दीज कैलकुलेशंस. यू कैन योरसेल्फ से, since the new patient is charged more by all the old nurses compared to the old patients, plus the new nurse is charging a fixed rate from all the patients irrespective of whether he is old or new. So there is no use of doing any calculations further. The prior assignment would be the same. New patient shall be allotted to the new nurse.
ओके, लिख लीजिए। Question number 4. You have been given a matrix which has selling cost per unit of a product by salesmen A, B, C and D in regions R1, R2, R3 and R4. Assign one salesman to one region to minimize the selling cost. Again objective minimization hai and the data is balanced. So start your steps. The given data or the given matrix is 4, 20, 36, 52, 12, 28, 44, 60, 16, 32, 48, 64, 8, 24, 40 and 56. Applying the row operations, we'll get 0, 8, 12, 4, again 0, 8, 12, 4, again 0, 8, 12, 4, after applying column operations you will get a matrix which has all the elements as 0. यहाँ तक सबका हुआ? ये आ गया? Now since you have so many zeros, now when you will draw the lines, you will have 4 lines covering all the zeros. चाहे vertical बनाओ चाहे horizontal बनाओ, 4 lines में all the zeros shall be covered. So that means this is our optimum solution. तो इसी पर हम assignment करेंगे, पर हम तो assignment में देखते हैं any line or any column or row which has only 1 zero. यहाँ पर तो सभी rows सभी column में 4 zero है. So that means you have many alternative possible solutions. आपके assignment के लिए कई सारे alternate solutions present हैं. So you can make assignment arbitrarily. आप किसी भी रो को पकड़ लो, उसमें किसी को भी एक को असाइन कर दो, बाकी के सब नलीफाई कर दो, फिर किसी भी दूसरे को असाइन कर दो, बाकी सब नलीफाई कर दो.
लाइक फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम इसको असाइन कर देते हैं, बाकी सब कैंसिल। सेकेंड इसको असाइन कर दिया, अगेन बाकी कैंसिल। थर्ड इसे असाइन किया, अगेन कैंसिल। एंड फोर्थ इज दिस। इसके अलावा आप भी कुछ और भी असाइनमेंट कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा असाइनमेंट कर सकते हो। इफ यू विल चेक ना, सो द आंसर ऑफ दैट टोटल कॉस्ट फॉर ऑल द असाइनमेंट, आप ऐसा करो या फिर पहले इसको असाइन करो, फिर ये असाइन करो, फिर ये असाइन करो, फिर ये असाइन करो, सबका टोटल कॉस्ट सेम ही आएगा। दैट मीन्स इट इज द मिनिमम कॉस्ट। आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, आपका टोटल कॉस्ट विल बी द सेम, वही मिनिमम कॉस्ट है। ओके, सो देर आर सो मेनी ऑल्टरनेट सोल्यूशंस जो आपको मिनिमम कॉस्ट देंगे। ये समझ में आ गया? सो वी हैव असाइंड A to R1, B to R2, C to R3 and D to R4. Second part is, if the selling price of the product is rupees 200 per unit and variable cost excluding the selling cost given in the table is rupees 100 per unit, find the assignment that would maximize the contribution. Selling price दिया हुआ है, selling price is 200 rupees, वेरिएबल कॉस्ट एक्सेप्ट दैट सेलिंग कॉस्ट, ये जो सेलिंग कॉस्ट दिया है ना, इसको छोड़कर बाकी के वेरिएबल कॉस्ट बोला गया है 100 रुपीज है। नाउ यू हैव टू फाइंड एन असाइनमेंट जहां पर कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज हो जाए। ओके, अब अगर ये देखोगे तो हर एक प्रोडक्ट, हर एक रीजन में आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका सेलिंग प्राइस इज 200 ओनली, उसका वेरिएबल कॉस्ट इज 100 ओनली, मतलब कि कंट्रीब्यूशन 100 रुपीज मिल रहा है एक्सक्लूडिंग सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट को छोड़कर बाकी का कंट्रीब्यूशन 100 रुपीज ही मिल रहा है, वो फिक्स है हर एक के लिए। ओके, तो अगर आप इससे नेट कंट्रीब्यूशन निकालोगे, व्हाट यू विल डू, 100 माइनस दीज कॉस्ट, वो नेट कंट्रीब्यूशन मिलेगा। इसका मतलब आप एक फिक्स्ड नंबर से इस मैट्रिक्स को डिडक्ट कर रहे हो, करेक्ट? तो आपका मैट्रिक्स तो सेम ही रहेगा। फिर उसका अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स कन्वर्ट करोगे, तब वापस उसमें जो मैक्सिमम नंबर है उससे सारे एलिमेंट्स को डिडक्ट करोगे, अगेन सेम एलिमेंट से आप सबको डिडक्ट कर रहे हो, अगेन यू विल हैव द सेम मैट्रिक्स। तो आपको अलग से दोबारा मैट्रिक्स बना के सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं है। यू योरसेल्फ नो कि वो एक कांस्टेंट नंबर है 100, हर एक पे 100 माइनस दिस, 100 माइनस दिस, 100 माइनस दिस ही हमें करना है। सो व्हेन यू आर डिडक्टिंग all these elements by a fixed number, you will get the same matrix. तो दोबारा से उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, you will again get the same assignment. Okay, so you just have to write that since the selling price, okay, लिख लो, I'll dictate. Since the selling price minus variable cost ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग सेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 100 फॉर ईच सेल्समैन एंड ईच रीजन। कॉमा, for each salesman and each region, when we will calculate net contribution by deducting selling cost from the gross contribution of rupees 100। क्या लिखा है स्टार्टिंग से, कोई एक पढ़ो। वो लिखा है ना रुपीज 100। ओके ओके, तो जो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन लिखा है जहाँ पर, वहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो रुपीज 100। लास्ट में अभी ग्रॉस कंट्रीब्यूशन लिखा ना, वहाँ ब्रैकेट में कर दो रुपीज 100।
सो व्हाट वी आर सेइंग इज ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में से आप इन सारे एलिमेंट्स को जब लेस करोगे, वी विल गेट द सेम मैट्रिक्स as given in the question. When we will deduct each element of the matrix by the gross contribution, that is rupees 100, we will get the same matrix which we have solved earlier or as given in part 1. We will get the same matrix as in part 1. Thus the assignment done to maximize the contribution, the assignment done to maximize the contribution will be the same as done earlier to minimize the selling cost. As done earlier to minimize the selling cost. It's logical also ना, selling price is fixed, the other variable costs are also fixed, वो 100 ही रहेंगे. अब अगर आपको contribution को maximize करना है, so you have only one option to minimize the selling cost. तो जो भी selling cost को minimize करेगा, वही contribution को maximize करेगा. आप सेलिंग प्राइस में चेंज नहीं कर सकते, दूसरे किसी वेरिएबल कॉस्ट में आप चेंज नहीं कर सकते. द ओनली पार्ट वेयर यू कैन चेंज इज द सेलिंग कॉस्ट. उसी से आपको कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करना है. तो कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करना है, सेलिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना है. हमने वही किया था पार्ट 1 में. ओके, थर्ड पार्ट